of Indian economy. So we went ahead with this planning and the economy worked forward. Okay, mixed economy. All right, and in this we had a lot of planning, a lot of schemes, a lot of projects, and I have told you one of the most important thing in 1947 which was taken, and that was closed economic system. What is that? Closed economic system. And in that we have mixed economy where government is in charge and also private sector is allowed. Okay, but the share is more lying in the government. All right, so let us understand this. Now as soon as we got these policies in place as to how to go about, we started to develop the projects like 5 years planning. Okay, first 5 years planning, second 5-year planning, third 5-year planning, it went on up till 1990 we are going to discuss. Okay, so 5-year planning, what is this 5-year planning? Within 5 years we have to concentrate on certain objectives to develop our economy. 5 साल के अंदर, है ना, 5 साल के अंदर कुछ ऐसे प्लान करके रखना है, कुछ ऐसे चीज़ें सोचना है जिनको हम विकास करेंगे, जिनको हम आगे बढ़ाएंगे, जिसका हम डेवलप करेंगे. ऑलराइट, सो इन चीज़ों को 5 सालों में बहुत ज़्यादा ही कंसंट्रेशन दिया जाता है और आगे बढ़ाने की कोशिश किया जाता है. वही हमारा 5-year प्लानिंग है. ओके, तो ये 5-year प्लानिंग में होता क्या है बेसिकली, चलो हम समझते हैं द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 5-year planning. All right, number 1, growth. Okay, when India planned, it kept in the mind that the economy, that the country, the nation has to grow. Okay, there was a planning, and without planning or without the growth there was no planning. If there was any planning, in that they adjusted the growth of our economy. All right, now what is this growth about? What to grow? Are we going to grow the crops? Yes. Are we going to grow the plants, trees? What? Okay, let me tell you. We planned about the growth of GDP, gross domestic product of our nation. What is this GDP? You have heard about it many times. GDP is the entire nation's, the entire economy's production of goods and service in a given period of time. Okay, in the economic year. Okay, GDP is the production of goods and services in a given period of time. Okay, so that is what it tells, that the production of our country must increase. It should grow. The production should grow and service also should grow. Okay, so that is what happens when we plan, or that is what lied in the planning of our nation. Okay, and one of the example is 5-year planning. Okay, so these planning went on. Okay, a lot of planning went on, and among them this 5-year planning came, and 5-year planning also concentrated on growth, GDP. Okay, we will see it later on how much we grew up. Okay, now second point of our planning objectives is that modernization. Any of the planning, कोई भी प्लान किया गया उसमें मॉडर्नाइजेशन होना था. किस तरह का मॉडर्नाइजेशन? अच्छे कपड़े पहनने थे क्या? मॉडर्न लुक. ओके, ये सभी चीज़ें हैं, लेकिन मॉडर्नाइजेशन का मतलब है हमारे देश का प्रोडक्शन सिस्टम है उसमें नए तकनीकों को अपनाना, नए मशीन को लाना, नए मशीनों का आविष्कार करना. ओके, और जो भी चीज़ें हैं उनको नए तरीके से करना, खेती नए तरीके से करना. ओके, तो ये सभी चीज़ें जो है हमारे देश में होने थे. प्लानिंग अगर है तो इनका होना ज़रूरी होता है कि तकनीकी
टेक्नोलॉजिकल थिंग्स आर मॉडर्न। ओके, यस, समझ में आया? एनीवन, एनी क्वेश्चन? ओके, फाइन। नेक्स्ट वन, सेल्फ रिलायंस। जब प्लानिंग किया गया तो हमारे देश को सेल्फ रिलायंस की ज़रूरत थी। हम दूसरे देशों से सामान मंगा कर नहीं जी सकते थे। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है सेल्फ, खुद, रिलायंस, अपने ऊपर निर्भर होना। हमारे देश की इकोनॉमी को अपने ऊपर निर्भर होना था। समझ में आ रहा है? अपने ऊपर निर्भर होना था, दैट मीन्स वी हैव टू प्रोड्यूस सो मच, इतना सारा हमें प्रोडक्शन करना है कि हमारे देश को किसी भी विदेशी मार्केट से, फॉरेन कंट्री से सामान को मंगा करके नहीं जीना है। ओके, हमें इंपोर्ट कम से कम चीज़ों को करना है। और इस तरह से हमारा प्लानिंग सिस्टम जो है काम करता था। हमारा प्लानिंग हुआ कि हमें सेल्फ रिलायंस, सेल्फ सफिशिएंट नेशन होना है, खुद पे निर्भर करना है, किसी दूसरे बाहर देश के नेशंस पे या मार्केट पे निर्भर नहीं होना है। समझ में आ रहा है? ओके, ऑलराइट। नाउ नेक्स्ट इज इक्विटी। इक्विटी का मतलब है इक्वालिटी। अगर हमारे देश में आधे लोग बहुत अमीर हैं, ठीक है, और आधे लोग बहुत गरीब, खाने के लिए कुछ नहीं है, तो हमारा प्लानिंग कहता है कि जो लोग नीचे स्तर पे हैं, जो लोग गरीब हैं, उनको आगे बढ़ाओ। ओके, उनको भी ऊपर उठाओ। ऑलराइट, जो गरीब है उनकी हेल्प करो, वेलफेयर सिस्टम होना चाहिए। ओके, इस तरह से हमारा प्लानिंग काम करता है। ओके, जो डिस्पैरिटी है, अमीरी और गरीबी का जो गैप है, उसको कम करना, ये हमारे प्लानिंग सिस्टम में है। और इन्होंने सोचा इसके बारे में कि अमीर अमीर ही बनता ना जाए और गरीब गरीब ही बनता ना जाए। इसीलिए हम लोग कोई ना कोई काम ऐसे करते हैं जिससे गरीब को भी बेनिफिट मिले। ये गवर्नमेंट का प्लान होता है। ओके, हम उस पर आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि गरीब लोग गरीब ही रहें और अमीर लोग बहुत आगे जाएं। अमीर लोगों के लिए सब कुछ है, कोरोना का दवाई है ना, लेकिन गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। ओके, हमारे देश की गवर्नमेंट ऐसा प्लानिंग की है कि सभी लोगों को इक्वल रखना है, और अगर गरीब है तो उसको भी लाने की कोशिश करना है एक प्रॉपर लिविंग स्टैंडर्ड तक। ऑलराइट, सो ऑल दीज आर केप्ट इन माइंड व्हेन देयर इज एनी प्लानिंग, एनी प्लान। ओके, एंड उसमें से बहुत ही इफेक्टिव प्लानिंग था, वो था 5 ईयर प्लान। ओके, 5 ईयर प्लान में बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हमारा इकोनॉमी चलने लगा या स्टार्ट हुआ। हमारा 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था 1951 में। ओके, जिसके बारे में मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा, अगले लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा। टिल देन, सी यू।